Hello, my dear students. Hope you are enjoying your study with good health. Okay, let's do our last topic of the lesson, chapter number 13, that is sound. And let's try to revise whatsoever we have studied so far. जल्दी जल्दी हम ग्रैप्स करने की कोशिश करते हैं हमने पहले के 4 सेशन में क्या किया. इन 4 सेशन व्हाट वी हैव डन. बच्चों, वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड what is sound, how it is produced in human beings, and then we have tried to understand that how it propagates, how it moves from one place to another place. Okay? Vibrations. Any object, when it is vibrating, it makes sound. Audible, inaudible. कहने का मतलब क्या है? जब वो वाइब्रेट करता है, depends upon the vibrations, number of vibrations, that is known as the frequency. Characteristics हैं किसके? Vibrations. What is vibration? Complete oscillation from central mean position to the one extreme and then again. वो सारा हमने ग्राफ्स किया है. Frequency, number of vibrations per second. If the number of vibrations per second are less than 20, or you can say 20 hertz, it is an inaudible sound. Audible sound range is 20 hertz to 20,000 hertz. That means 20 hertz to 20 kilohertz. Audible sound, inaudible sound, working of the ear, how sound is produced in a human being, ये सारा हमने बच्चों किया. ठीक है. और हमने एक जो कोरिलेट किया किसको? There are 3 characteristics of the what? Vibration. Oscillation. इसको हम oscillation भी बोलते हैं. And what is vibration or oscillation itself? To and fro, back and forth, up and down movement of the pendulum. Here we are, I am saying pendulum when I am just doing this activity. But any object, to and fro, back and forth, up and down movement, this way, that way, is known as vibration. It is also known as oscillation. And we have tried to understand the 3 characteristics of a vibration. क्या क्या बच्चों? Amplitude means the maximum distance it is covering from the mean position. Mean position perpendicular to the earth, this much. This is what? Amplitude. Then we have understood the time period. Time taken to complete one oscillation or time taken to complete one vibration, you can say. How to calculate वो 20 हमने करके देखी थी. Okay. Then frequency to complete one vibration, that is the time period of the vibration. Frequency, number of times it vibrates. If it is vibrating more than 20 times, it produces a audible sound. Inaudible, less than that. Inaudible, less than that. ठीक है. फिर हमने क्या किया? Characteristics of sound. अब हमें ये तो मालूम पड़ गया how sound is produced. तो characteristics of sound क्या है बच्चों? Loudness. वो कब loud होती है, कब धीमे होती है. Loudness is related with the amplitude of the vibration. Higher the amplitude, louder will be the voice. Lower the amplitude, lower will be the loudness. Then comes this what? Pitch. And funniest is that loudness is directly proportional to the amplitude, square of the amplitude. Square of the amplitude means if we double the amplitude 2 times, double मतलब 2 times. If we make the amplitude 2 times,
From 1 to 2, the loudness is increased to 4 times. Scale of the what? Amplitude. Likewise, if we reduce it to half, amplitude is reduced to half, loudness will go down by 1/4. Scale of 1 by 2. So that is the relationship between what? Amplitude and the loudness. And the second character of the sound is pitch. Pitch is again what? It is correlated with. It is correlated with the frequency. Higher the frequency, shrillness. Higher is the pitch. Lower the frequency, lower is the pitch. Low is the pitch. मैंने आपको वो ट्यूनिंग फोर्स लेके भी बताया था बच्चों. When the fourth length is bit great, ज्यादा है, it vibrates lesser number of times. That means its frequency is less, its frequency is more, and still the frequency is more. कितना बताया था मैंने? 512, 341, and then 256, 341, अलग अलग फोर्थ साइज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी. अब क्या है बच्चों? दैट इज वाई द पिच ऑफ द चाइल्ड और पिच ऑफ ए गर्ल और ए वुमन एंड ए पिच ऑफ ए वुमन डिफर. लो पिच, shrillness, high pitch. It is directly, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा शिल होगा. एंड थर्ड कैरेक्टर हमने साउंड का जो पढ़ा था बच्चों, दैट वाज द क्वालिटी ऑफ द साउंड. हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इन 50 ladies, when one lady having it back toward you says something. Suppose 50 ladies wearing the same dress, still you can say, yes, she is my mom. Or if 50 gents are there in the same dress and one gentleman stand up and he starts saying something, you say, yeah, he is my chachu. The quality of the sound. हम कैसे पहचान लेते हैं a musician is playing the which musical instrument? कैसे पहचान लेते हैं? ओके, लाइक दिस. वो क्या है? क्वालिटी. वो क्वालिटी क्या है? हियर व्हेन द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी इज सेम, बट स्टिल द साउंड इज डिफरेंट. इट इज बिकॉज दो the frequency is same, the amplitude is same, but here the shapes of the sound wave is different. That's all. That means different instruments, they produce different sounds, waves of different shapes. That is why जो उनकी वॉइस है, उनका जो बोलना है, स्टाइल है, वो different and we can easily recognize. ठीक है ना? माइकल जैक्सन बोल रहा है या अपना वो कि आजकल रागिनी गाती है, सपना चौधरी जी बोल रही है. But on that day I have given, that means last lesson I have given you the examples of Lata ji, Asha ji, Mukesh, Rafi, Talat Mahmood and all that. Of my era, today I am saying Michael Jackson of your time. Okay, Sonu Nigam of your time. Anyhow, or you can say, वो क्या पंजाबी सिंगर हैं आपके, है ना? चलिए. So we have studied all this and we have understood also. Let's try to finish our topic and cover that. What is noise and what is music? Before coming to that, वो हमने on that day ultrasounds and no. Yes, we have वो ऑडिबल इनऑडिबल में करते हुए हमने वो कहा था, यानी कि जो लाउडनेस है वो डेसिबल्स में है. विच साउंड इज हैविंग अ जारिंग इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स अबव 130 डेसिबल अगर साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों,
that is when the jet taking off and all that. Beyond that, that means 140 and below is having it is painful to our ears. तो क्या है बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा था उसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी हायर दिस अल्ट्रासोनिक साउंड, लोअर दिस इंफ्रासोनिक. लेस देन 20 हर्ट्ज मीन्स इट इज इंफ्रासोनिक. ऑडिबल इनऑडिबल में किया था हमने वो, वहां आपको मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था. बैट आल्सो प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक साउंड. दैट मीन्स when it screams करती है, scream करती है bat, when it screams during screaming, it produces the sound of ultrasonic. That means frequency is more than 20 kilohertz or 20,000 hertz, which we cannot hear. But based on this, we have also discussed that these ultrasonic sounds are having a greater penetration. Ultrasound machine has been developed. It is being used in the medical line. Very, beneficial. It can have a pic of your this inside story of your kidney, your pancreas, your liver, everything which is inside your tummy. Medical point of view से ultrasonic sounds. यहाँ बैट का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, since I am telling you when the sound waves strike some object, they are bounced back. These sound waves we cannot hear because they are ultrasonic sound waves. But bat when he is flying, आपने देखा होगा बच्चों ये चमगादड़ बैट, आज वैसे भी चमगादड़ आजकल बहुत मशहूर हुई है. ये earlier it was being told like this and that is COVID-19 has been spread through bats and all that. But afterwards it was stopped saying like this. बाद में कुछ नहीं निकला ऐसा. चलो, anyhow, coming to the point. When bat is flying, आपने देखो रात के वक्त बच्चों ये चमगादड़ तेजी से उड़ के आती हैं. They just enter your room and before striking to the wall, bus come back. Just come back. In your veranda, corridor, like this. How? The sound waves produced by the screaming of the bat, they just strike the wall and bounce back. Bat comes to know that a wall is ahead of me. वो टकराने से पहले ही वापस मुड़ जाती है. Based on this quality, based on this knowledge, our radar system have been developed, which are not cast by the enemies and all that. They guide our aeroplane, jet fighter and all that. आजकल ये टेक्निक भी. ये रडार सिस्टम कैसे बना? बैट की उस साइंटिफिक क्वालिटी को ध्यान में रखकर बना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू नॉइज एंड साउंड. व्हाट इज नॉइज एंड म्यूजिक? Noise and music. Okay. As and when I am starting this noise and music in the classroom, I simply ask question or I simply ask my kids, my students. Okay, your papa is enjoying newspaper with a cup of tea made by your mom. All of a sudden, your mom, it is a Sunday, your mother goes to the kitchen and she starts grinding something in the mixture grinder. What is the reaction of your father, of your papa? Ay, kya kar rahe ho bhai? Why this noise? That means the sound produced by the mixture grinder is disturbing your dad, is disturbing your father. Or he is enjoying newspaper. Inside, you are sitting in the room, he is in the lawn and all that. He is enjoying the newspaper and sipping a cup of tea in the lawn. Inside in the room, you start playing loud music. Immediately your father will say, "Hey gentleman, lower down the volume of the TV." Why? Because
the sound of the TV or the music which you are playing is giving an unpleasant situation to your father. But anyhow, again the same situation, he is sitting outside, enjoying the paper with a cup of tea, and you are playing light melodic songs on your, you can say, earphone and all that. उस पापा के भी गानों में वो लता के या क्या कहते हैं आपके मुकेश के, रफी के गानों की वो धुन सुनाई देती है. क्या बोलते हैं पापा, यार थोड़ा वॉल्यूम अप कर दो so that I can also listen. So what is that? It is this voice, this sound, not voice, this sound is having a pleasant effect on the ears of your father. But the sound of the mixture grinder or the loud music which you are playing, my topic is clear. What is noise? What is music? What is noise? What is music? Noise, the unpleasant sounds around us are called, I have written and space नहीं था वो उसके साथ attached था. The unpleasant sounds around us are called noise. किसी भी तरह की any unpleasant sound, that is the noise. चाहे वो मिक्सचर ग्राइंडर की है, चाहे वो लाउड म्यूजिक की है, और चाहे वो Z is taking off, or honking of the horns by the vehicle. Suppose your कोठी is just on the road, traffic jam is there. आपको मालूम है बच्चों, जब वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, मालूम है ट्रैफिक जैम है, still the driver or you can say the man who is driving that particular vehicle, pom 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 pom, honking the horns. तो क्या है? Unpleasant sounds. किसी भी तरह की साउंड है which is unpleasant, it is a noise, and the sounds which are pleasant to hear are called musical sound. That's all. वही मैंने आपको बताया. पुराना गीत चल रहा है, पापा क्या बोलते हैं, थोड़ा वॉल्यूम ऊपर कर दो. और जब आप लाउड म्यूजिक which is going to give a jarring effect to the ears of your dad, अरे भाई वॉल्यूम नीचे रखो, खुद सुनो यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो. Since it is a noise. Since it is a noise. Now coming to the different type of musical instruments. कौन कौन से होते हैं बच्चों? Different type of musical instruments. अब क्या है बच्चों? The base of each and every musical instrument is the स्वर, notes, सरगम जिसको बोलते हैं हम, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, उसे हम क्या बोलते हैं, नोट्स और स्वर. ठीक है. तो अब डिफरेंट बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में वी एक्सपीरियंस और विच वी समटाइम हियर आल्सो एंड ऑल दैट. आपने देखा होगा बच्चों, आपका गिटार है, पियानो है, एक तारा है, सिंगल वायर वाला, वो क्या चीज वाइब्रेट करती है? व्हाट इज वाइब्रेटिंग इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स? स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, जो एक खिंची हुई तार होती है, चाहे वो गिटार है, चाहे वो वायलिन है, चाहे वो सितार है, चाहे वो वीणा है, चाहे वो एक तारा है, कुछ भी है, जो जिनके ऊपर स्ट्रेस्ड वायर्स हैं. मंडेलियन भी बोलते हैं शायद वो दिलवाले दुल्हनिया डीडीएल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस पिक्चर में भी था, वो बजाता ना शाहरुख खान. तो मंडेलियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो द नेम. ओके, वो उस पे क्या है, स्ट्रिंग्स हैं. when we are playing with the strings, they vibrate and produce the sound. That is one of the musical instruments. Second type of musical, उसमें क्या है बच्चों, here the air column vibrates. Air column vibrates. जहां एयर कॉलम वाइब्रेट करती है, योर माउथ ऑर्गन, योर फ्लूट, बांसुरी,
जब मैंने आपको वो करके दिखाया था, आई हैव यूज द कैप ऑफ द, क्या कहते हैं आपको, उसका, या मैंने आपके सामने ये, व्हाट इज दिस हियर, wind air column is vibrating, flute, mouth organ like that, जिस भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सैक्सोफोन, आपका वो बैंड वाले बजाते हैं, वीणा, पीपनी सी बजाते हैं वो, इवन आपको कभी आप मेले पे जाते हो, यू ब्लो द, क्या कहते हैं उसको, वो बैलून, एंड व्हेन द एयर कम्स आउट फ्रॉम द बैलून, वो पीपनी सी बोलती है वो, or what, wind, here the air column, wind type instruments, membrane, there are certain instruments like your tabla, drum, mridam, ढोलक, ये सब क्या है, जब हम उस लेदर की स्ट्रेच शीट को, मेम्ब्रेन को बीट करते हैं, here the membrane, stretched membrane vibrates, stretched membrane vibrates. Then comes this plate type. Yes, plate type means आपके स्कूल का बेल, घंटी, स्कूल की घंटी, मृदम, वो क्या कहते हैं आपका, वो खड़ताले, इवन आपका जो शिव भोले का चिमटा बजाते हैं, आप बजाते थे खड़ताले से, वो जो आरती होती है, इवन द बेल विच यू आर रिंगिंग एट द टाइम ऑफ आरती इन मंदिर एंड ऑल दैट, वो भी क्या है बच्चों, plate. That means we are having different types of musical instruments where the sound is produced by the vibration of different objects. Veena, guitar, piano, stringed what? Wires, flute, mouth organ, saxophone, or your band, musical bands, wind, membrane, ढोलक, तबला, प्लेट टाइप, वो आपकी खड़तालें, ठीक है, आपका स्कूल का बेल, लाइक दैट, ऑल टाइप दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उसमें क्या क्या स्ट्रेच वाइब्रेट करता है, कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपकी बुक में दे रखा होगा, हाउ दे प्रोड्यूस साउंड, दैट आल्सो आई हैव टोल्ड. देन वन मोर इंस्ट्रूमेंट यू कैन हैव, you can try at your home also, zal tarang. Zal tarang क्या है बच्चों, you take at least 5-6 bowls, कटोरी ले लीजिए, of same size, made up of the same material, स्टेनलेस स्टील की हैं, चाहे वो ग्लास की हैं, कांच की हैं, but their size should be same. Fill some water in each and every one. In first one, small quantity, go on increasing the quantity of water. कहने का मतलब, पहली वाले बाउल में कम पानी, ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी. Now have some striking material. उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो ड्रम बीट करते हैं, जिससे आप, वो लकड़ी का बना होता है, वो अभी मेरे दिमाग में वो आपका वो वर्ड नहीं आ रहा है, डग्गा, यस डग्गा, डग्गा बोलते हैं उसको, जो हम ड्रम बीट करते हैं, वैसा ही वो जो लकड़ी का डग्गा होता है बच्चों. जस्ट विद केयर स्ट्राइक ईच एंड एवरी बॉल विद द सेम फोर्स, यानी कि आप जेंटली 1 2 3 4 5 6, इससे और भी है तो, यानी कि try to strike the each and every ball with that dagga with the same force, and try to listen the sound produced by each ball. You will find first ball where the water is less, there the frequency of vibration of this water will be low, it will be having low pitch. The moment the water level goes in increasing, highest frequency and highest pitch. That means here shrillness increasing from ball number 1 to ball number
हाई। कहने का मतलब क्या है? Here it is the sound of a man. It turns to be a girl or a woman, then a kid, then a kid. यानी कि शिलनेस, जैसे हमने देखा था बच्चों, मैन के अंदर लो पिच है, मोटी आवाज है, पतली तीखी आवाज है बच्चों में और लेडीज के अंदर। सेम वे, लो पिच, हाई पिच। Highest frequency in the last bowl, which is having more water, more chillness. जो साउंड निकलेगी वो ज्यादा बारीक पतली होगी, तीखी होगी। So this is Jal Tarang, and you enjoy the music of Jal Tarang. Really, it is very beautiful to enjoy that music. घर में करके देखना बच्चों। स्कूल में जब आते हैं आप तो मैं वही एक्टिविटी करता हूं, करके दिखाता हूं। But now practically to have pic and all that, this videograph and all that, not possible. वो arrangement नहीं हो पाया, otherwise I would have used some table and all. नहीं हो पाया। I am giving, यानी कि जिसके inspiring you to do this activity at home and enjoy the music of the Jal Tarang. ठीक है? Now coming to the last topic, noise pollution. Yes, this is also one of the, जैसे हम बोलते हैं ना, वो कहते हैं दूसरा गंदगी वाला पोल्यूशन पढ़ा हुआ हमने 6th में 7th में, गार्बेज इन गार्बेज आउट हमने पढ़ा था 6th में। 8th में भी हम पढ़ेंगे वो पोल्यूशन। 7th में हमने सीवेज वाला पढ़ा था। ओके, दैट इज आल्सो पोल्यूशन, वन सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन। नॉइज क्या थी बच्चों? अनप्लेजेंट साउंड अराउंड अस। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है बच्चों? द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड, यानी आप क्या है बच्चों? नॉइज तो जो अनप्लेजेंट है। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स, जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। जैसे वो मिक्सर ग्राइंडर की आवाज थी, टेकिंग ऑफ ए जेट प्लेन, या आप द्वारा चलाया गया लाउड म्यूजिक था। तो वही सेम थिंग, वो दिट इज दिस साउंड व्हेन इट इज ऑन लाउडर साइड, व्हिच इज अनप्लेजेंट, अनवांटेड, इट बिकम्स ए पोल्यूशन। Why we are using the word pollution? Because it is going to have harmful effect, particularly related to your health. That is why it is known as pollution. एयर पोल्यूशन भी आपके ऊपर हेल्थ हैजर्ड है, वाटर पोल्यूशन भी आपके लिए हेल्थ हैजर्ड है। सेम वे नॉइस इज आल्सो ए पोल्यूशन, रीजन बीइंग इट इज काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो नॉइस पोल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स इन आवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। हमारे इर्द गिर्द, हमारे एनवायरमेंट में अनप्लेजेंट, लाउड, अनवांटेड, अनप्लेजेंट साउंड जो है, व्हाट इज दैट? वो सब क्या है बच्चों? यही रेड लाइट के ऊपर अनवांटेड वो हॉकिंग ऑफ द हॉर्न, पॉ 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 पॉ, वो क्या है? साउंड पोल्यूशन। क्या है? साउंड पोल्यूशन। ओके, ये साउंड पोल्यूशन बच्चों, दिस साउंड पोल्यूशन, हु इज द, व्हाट इज द कॉज? Who is making this sound polluted? Motor vehicles. वही बता दिया मैंने। Honking of the horn, unnecessary honking of the, आपने देखा होगा बच्चों, when you are क्या कहते हैं going in a bus and all that, कई ड्राइवर्स की आदत होती है, वो बस जा रहे हैं, कोई और व्हीकल है, आराम से बड़ी खाली सड़क पड़ी है, ओवरटेक कर भी सकते हैं, बट नहीं, वो पौ पौ पौ, वैसे ही पौ पौ बजाए जाएंगे। स्कूटर वाला जा रहा है, आप बड़े आराम से उसे साइड से क्रॉस कर सकते हैं, स्टिल फर्स्ट ही विल प्लाई द हॉर्न, देन ही विल क्रॉस। अब बच्चों, यू विल बी सरप्राइज टू नो, in Western countries, England and America, I have visited, personally visited and seen this also. हॉर्न बजाना
अपराध है, क्राइम है, आपके ऊपर फाइन हो सकता है, फाइन, हैवीएस्ट फाइन। वहां एक व्हीकल वाला हॉर्न कब बजाता है मालूम है आपको? When the other vehicle driver has made a ड्राइविंग मिस्टेक, गलती की है उसने, उसकी गलती से एक्सीडेंट, उसकी गलती से कुछ भी हो सकता था, तब हॉर्न बजाते हैं। और हमारे यहां मजे लेने के लिए हॉर्न बजाते हैं, और वो मजे लेने के लिए हॉर्न। सबसे बड़ी बात क्या होगा बच्चों आजकल का यंग ब्लड, वो अपना वो मोटर बाइक का सिलेंसर ही निकाल के नया सिलेंसर फिट कर लेते हैं, पड़ा पड़ा, जैसे वो बुलेट चल रही होती है, सम अदर टाइप ऑफ पड़ 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 पड़, different type of sounds. So all these sorts of what they are causing noise pollution, that means motor vehicles. अभी दिवाली बच्चों गई है, just 15 days back, today is 29, 14th को दिवाली थी। आप सबने बड़ा क्रैकर्स एंजॉय किए होंगे, पटाखे चलाए होंगे, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। बच्चों आपको मालूम है योर स्कूल इज 3 kilometers फ्रॉम द सिटी एंड माई रेजिडेंस इज इन द स्कूल इटसेल्फ। आई वॉज हियरिंग द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स व्हाइल पुटिंग अप इन माई रेजिडेंस और व्हाइल आई वॉज आउट इन माई लॉन। 2-3 घंटे आपका तो एंजॉयमेंट है बच्चों, बट इन फैक्ट इट इज काजिंग ए नॉइज पोल्यूशन। दैट मशीन्स, यस, इंडस्ट्रियल एरिया है बच्चों, मशीन जब ये रन करती हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑल दैट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट साउंड इज ए नॉइज पोल्यूटिंग फैक्टर. Continuously sound produced by the running of the machines is also a noise pollution. Then yes, aeroplanes taking off, landing and all that. फिर आपने देखा होगा लाउड स्पीकर, यस। अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर अक्टूबर में, हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे 19 में। कमल के फूल पे मोहर लगाना, सबका साथ सबका विकास, हाथ, साइकिल, यानी एक जाता है, दूसरा लाउड स्पीकर बजाता हुआ व्हीकल आ जाता है, इसको वोट दो, उसको वोट दो। शादी पे जाते हो, बड़े बड़े वो स्पीकर्स लगा रखे होते हैं। व्हाट दे आर डूइंग? लाउड स्पीकर्स क्या करते हैं ये? दे आर ए काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। क्या बच्चों आप पढ़ रहे हो कमरे में, आपके बाहर स्ट्रीट में वो कमल के फूल पे मोहर लगाना, हाथ के पंजे पे मोहर लगाना, लाउड स्पीकर पे, और उस वक्त सभी देशभक्ति में रंग जाते हैं, चाहे वो कमल के फूल वाला है, चाहे वो हाथ वाला है, चाहे वो साइकिल वाला है, चाहे वो हाथी वाला है, सभी ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, एक ही गाना लग रहा है, देशभक्ति के गीत लगे हैं। अरे भाई देशभक्ति के गीत तो हैं, दे आर डिस्टर्बिंग योर स्टडी, डेफिनेटली दे आर डिस्टर्बिंग योर स्टडी। इफ दे आर डिस्टर्बिंग यू, अनप्लेजेंट, अनवांटेड, व्हाट इज दैट? नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। और एक छोटा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं बच्चों। आई अटेंडेड वन ऑफ द रिंग सेरेमनीज इन माय रिलेशन। हमारे किसी रिलेशन में रिंग सेरेमनी थी, लड़के के दोस्त खाने पीने वाले थे, छोटा सा हॉल था होटल के अंदर, लाउड म्यूजिक इज गोइंग ऑन देयर। That washroom was just adjoining to that where that loudspeaker was going on and all that.
volume was so high that when I have gone to use the washroom, the walls of the washroom were vibrating. And you can understand what would have been the position of your this ears. The what? Outer ear membrane. वो कैसे वाइब्रेट करेगी? It may not burst even. बाहर आकर बच्चों मैंने इस म्यूजिक सिस्टम वाले को बोला या तो इसके वॉल्यूम कम रखिए, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे कहां मानते हैं? तो मैंने क्या किया बच्चों, आपको मालूम है? मैंने म्यूजिक सिस्टम बंद करवा दिया। अब उसके दोस्त अटक गए, और दोस्त एक तरफ मैं एक तरफ, तो मेरे से बहसबाजी करने लगे। वो कहने लगे आपको मालूम है हम कौन है? तो मैंने भी उनको बोल दिया बेटा बच्चों आपको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। बच्चों जब तक मैं यहां हूं ये म्यूजिक सिस्टम नहीं चलेगा, और जब तक मैं वहां हाफ एन आवर वहां रहा मैंने म्यूजिक सिस्टम नहीं बजने दिया। व्हाई? Noise pollution. Because it was going to affect the kids, those who were there, जो छोटे बच्चे वहां फंक्शन अटेंड करने आए थे। It was a health hazard for them. हो सकता है उनमें से कुछ बच्चों के कानों में प्रॉब्लम हो जाती, इतना लाउड म्यूजिक था। Harmful effects of noise pollution. Harms of noise pollution. Health related problem, loss of hearing. लॉस ऑफ हियरिंग, दैट मीन्स अगर आप कॉन्टिन्यूसली लाउड म्यूजिक सुनते हैं विच इज अ नॉइस पोल्यूशन, विच इज अ नॉइस, इट मे हार्म योर व्हाट हियरिंग। आपको आफ्टर सम टाइम क्या होगा बच्चों? इट मे हैपन दैट योर ईयर्स विल और you will hear the sound of that pitch only, that loudness only. यानी उतनी ऊंची आवाज अगर हो रही होगी तो आपको सुनाई देगा, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा। दैट मीन्स यू आर टिल्टिंग टुवर्ड डेफनेस, डेफ। आपको सुनाई, डेफ, आपके कान बहरे हो जाएंगे। दैट इज द हार्म ऑफ द noise pollution. Okay. Hypertension. अगर आप तेज म्यूजिक के अंदर बैठे हैं या जहां कॉन्टिन्यूस नॉइज पोल्यूशन होता है, योर ब्लड प्रेशर में राइज, में गो अप एंड मे कॉज द हाइपरटेंशन प्रॉब्लम, ब्लड बीपी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम इन यू। ओके। सेकेंडली, मैंने जैसे पहले भी आपको बोला था, आप स्टडी कर रहे हैं और वो लाउड स्पीकर वाले वोट मांगने आ रहे हैं, यू आर लाइकली टू लूज योर कंसंट्रेशन टुवर्ड स्टडी। आप जो कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो समझना चाह रहे हो, आपके समझ नहीं आएगा। यू विल नॉट ट्राई अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। व्हाट इज दैट? लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग, यस। और रात के वक्त बच्चों क्या होता है, आप सोने की कोशिश करते हो, अगर अड़ोस पड़ोस में शादी है, वहां तेज तेज म्यूजिक चल रहा है, क्या आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। इवन समटाइम बच्चों क्या है, जिन लोगों के घर हाईवे के पास होते हैं, अगर आपकी नींद खुल जाती है, इफ योर व्हीकल इज पासिंग ऑन द रोड, the sound of the tires, friction produced by the friction of the tires, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर तक जो व्हीकल वो जा रहा है, उसके टायरों की फ्रिक्शन की जो आवाज है,
वो आपके कानों में पड़ती रहती है, आपको नींद नहीं आती। समटाइम इवन द टिकिंग ऑफ द वॉल क्लॉक, जो टिक टिक की आवाज होती है, दैट आल्सो डिस्टर्ब। अगर वो टिक टिक की आवाज आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो जो लाउड म्यूजिक है जो शादी का बज रहा है, क्या आपको सोने देगी? यू विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, और जब स्लीपलेस नाइट होगी तो सुबह भी अच्छी नहीं होगी। इट विल हैव ए बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। एंड लास्टली यू कैन से हेडेक। यस, ज्यादा देर तक आप ऊंची आवाज के अंदर रहते हो बच्चों, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। यू मे हैव हेडेक आल्सो। ऑल दीज प्रॉब्लम क्या है बच्चों? दे आर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, दैट मीन्स नॉइज पोल्यूशन इज मेनली causing health problem. Loss of hearing, hypertension, high blood pressure, then sleepless nights or headache, or what that, losing the concentration on study, or what are health related problem. If it is bad, so you can say that noise pollution is not good for us. What we should do? भैया जो नॉइज पोल्यूशन का कारण है वो कारण रिमूव कर दो, दैट्स ऑल। अननेसेसरी हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स, तो पौ 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 पौ। इंडिया में भी कानून लागू भाई, हॉर्न नहीं बजाओगे। शादी के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, कई स्टेट्स के अंदर है बच्चों कि आफ्टर दिस टाइम, देन अगर शादी है ठीक है, इफ यू वांट टू सेलिब्रेट यू सेलिब्रेट, नोबडी इज गोइंग टू फॉरबिड यू। आपको कौन मना कर रहा है? बट यू विल नॉट प्लाई द म्यूजिक आफ्टर 10 ओ नाइट, दैट्स ऑल। 10 बजे के बाद क्या होता है बच्चों? आप म्यूजिक नहीं बजा सकते। अगर आप बजाते हो, द लोकल रेजिडेंट्स, द पीपल हु आर रिजाइडिंग around that resort or that banquet hall and all that, they can call the police and they will come and stop. और आपको मालूम है एक बड़ा अच्छा कानून है ये, 10 बजे के बाद अक्सर क्या होता है बच्चों, 9:39 उस वक्त तो हम बजाना शुरू करते हैं, आधा घंटा होता है और बंद हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड लॉ made by a few states. In Delhi it is there. You cannot play the music in a marriage hall after 10. After 10, you can be prosecuted. You can be put behind the bars. It's a criminal offense. So, इस तरह की बातें करके, ठीक है, जो नॉइज मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनको शहर से बाहर ले जाओ। इसलिए तो क्या बच्चों आजकल आपने देखा होगा, इन ईच एंड एवरी city we are having industrial area at the outskirts of the city। और आपने ये भी देखा होगा जो एयरपोर्ट्स हैं वो बाद में भले वो शहर के बीच में आ जाते हैं, जब वो एयरपोर्ट्स किसी पर्टिकुलर सिटी में बनाए जाते हैं, वो मेन सिटी से काफी दूर 5, 7, 10 किलोमीटर की दूरी पे बनाए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों? यस, आपने देखा होगा बच्चों, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन आवर ओन कार, और व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन ए बस, और व्हेन वी आर गोइंग ऑन ए मोटर बाइक ऑन ए रोड, वी सी trees planted by the forest department on both sides of the road. Why trees are planted on the roadside? In fact, trees reduce the noise pollution. That is why. So, इसीलिए क्या है बच्चों, पेड़ काटना मनाही है भाई। आप पेड़ नहीं काट सकते, डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते। फॉरेस्टेशन, पेड़ लगाइए जितने ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। तो रोड साइड पे क्या है, trees should be planted to have lesser noise pollution. So with this we come to the end of our topic, sound. I hope with day-to-day life experiences, day-to-day practical problems and practical events happening around us and all that,
मैंने आपसे इस लेसन को शेयर करने की कोशिश की है। एंड ये जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट वाइब्रेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के जो रिलेशनशिप था बिटवीन loudness and amplitude, pitch and the frequency, and the quality of the sound and all that, I have tried to explain in a very simple way and hope you have understood. Still, if you are finding any problem, any sort of problem in this chapter, please contact me. Thank you. Enjoy your study.